Yes, good afternoon, everyone. So, after we have completed this chapter, AGM, and I'm assuming EGM is also completed, so let us solve some case studies on EGM. Now, when we talk about solving the case studies, two main principles should be kept in mind. Read the question carefully. While reading the question, try to identify the requirement of the question. The last line or the last two lines, if the question has two sub questions, it must be read carefully. कि क्वेश्चन में आपसे मांग क्या रहा है, बिकॉज आप जो प्रोविजंस लिखेंगे वो उन्हीं डिमांड को ध्यान में रखते हुए आपको शेप करना है. सर मैं समझा नहीं आप क्या ज्ञान दे रहे हैं. तो आइए हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को. जैसे दिस इज अ वेरी पॉपुलर पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन. To remove the MD, 40% members of Global Limited submitted a requisition for holding EGM. The company failed to call the said meeting and hence the requisition is held the meeting. Okay, यानी कुछ लोगों ने सेक्शन 100 में रखता है रिक्वेस्ट जमा दिया होगा, पर बोर्ड ने मीटिंग नहीं बुलाया तो शेयर होल्डर्स ने खुद बुला लिया. और since the MD did not allow the holding of meeting at the registered office, the said meeting was held at some other place. तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा ये तो गलत बात है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं हुआ, दूसरी जगह हुआ. तो हम लोग जब EGM का प्लेस पढ़े थे, it was nowhere written that EGM must be held at the registered office itself. In fact, EGM can be held at any place in India. जैसे AGM जब हम लोग पढ़ते थे तो बोलते थे within the city, town, village where the registered office is situated. Okay, but EGM can be held at any place in India. इनफैक्ट EGM तो इंडिया के बाहर भी हो सकता है. अभी वो मैं एक्सेप्शन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पर ये याद आ रहा आपको. तो क्वेश्चन को मैंने बोला था दैट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ट्राई टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स. तो ये वन ऑफ द पॉइंट्स आंसर में आना चाहिए. एंड अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ MD वाज पास्ड. द क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स. एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द सेड मीटिंग. जो शेयर होल्डर्स बुलाए हैं, क्या ये मीटिंग वैलिड है? तो आपको शायद याद आ रहा होगा कि जब बोर्ड स्टेप्स नहीं लेता है एक टाइम के अंदर तो शेयर होल्डर्स के पास अधिकार होता है बुलाने का, तो उसको समझाना है. क्वेश्चन का एक और एक पार्ट यहां पर आप देखोगे. एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड इन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट. यस, रेजोल्यूशन भी वैलिड होगा क्योंकि मीटिंग भी वैलिड है. तो आइए इसको देखते हैं. आंसर जो छपा हुआ है उसमें क्या भूल है या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए. और जैसा कि आप जानते हैं हमेशा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट या एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. अंडरस्टूड? यानी पहले आपको लीगल प्रोविजन हैमर करना होगा. सर सेक्शन नंबर अगर भूल जाऊं उतना टेंशन में मत आओ, वैसे नंबर ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है 100, ये कोई नहीं भूलता है. तो लुक एट द स्क्रीन्स. सेक्शन 100 makes it obligatory यानी mandatory, compulsory on the board to convene an EGM of the members if requisitioned by the stipulated number of members holding at least 1% of the paid up share capital carrying voting rights. इसमें तो आपने PhD की थी. इसमें लोग क्या लिख के आते हैं? When 10% of the number of members request, here 40% of the number of members requested, so everything is valid. Wrong. यहां पर पहले तो आपने प्रोविजन का शो ऑफ किया है that members holding 10% of the paid up share capital carrying voting rights, उनके तरफ से रिक्वेस्ट जाना चाहिए. And we are assuming, लिखना चाहिए था यहां पे, that these 40% members are meaning members holding 40% of the paid up share capital carrying voting rights, or we can assume that these 40% members are holding greater than equal to 10% of the paid up share capital carrying voting rights. yahan assumption lena padega aapko. However, section 100 subsection 4 says if board fails to proceed the call meeting within 21 days from the date of deposit of a valid request for a date within 45 days of the receipt of the requisition. यानी कि अगर आपको ये डायग्राम याद आए, ऐसा एक डायग्राम हमने यहां पर पढ़ा था. लेट मी सी वेदर दिस बुक हैज. यस, कि members holding 1/10 of the paid up share capital make a written request, sign and file at the registered office. The board will take steps. BOD within 21 days, steps are taken by BOD to call EGM so that meeting can be held within 45 days. और सारे डेज कहां से काउंट हो रहे हैं? From the date of deposit of request. तो ये बहुत अच्छे से सजाकर लिखना पड़ेगा. Otherwise, the requisition themselves call the meeting within 3 months. And again, look here. ये सारे days कहां से काउंट हो रहे हैं? From the date of deposit of request.
तो ये आंसर्स में अगर आपके आए हैं और आप बोल रहे हैं कि वी आर assuming this that these 40% members are holding 10% of the paid up share capital carrying voting power, तो सब कुछ सही है. ओके, एंड मीटिंग कहीं भी होल्ड हो सकती है, इस पॉइंट को भी टच किया गया है. जरूरी नहीं कि रजिस्टर ऑफिस पे हो, रेजोल्यूशंस भी बाइंडिंग है और रिमूवल ऑफ एमडी भी वैलिड है. बट डिड यू सी हाउ द आंसर्स वेयर फ्रेम्ड? इनफैक्ट ये जो छपा हुआ इंस्टीट्यूट का आंसर है, इससे बेटर आप लिख सकते हैं. मैं आपको वापस रूपरेखा बता रहा हूं, होमवर्क आप मुझे करके भेजोगे. When members holding 1/10 of the paid up equity capital or paid up capital carrying voting rights make a written request at the registered office, a proper signed request, written request, and file it at the registered office, then the board shall take steps to call the steps within 21 days from the date of deposit of request. Steps लेगा 21 दिन के अंदर, so that the meeting can be held within 45 days from the date of deposit of request. पक्का everyone? और एक क्वेश्चन और आता है, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूं कि अगर ईजीएम, जैसे एजीएम में आपने सुना था कि एजीएम सुबह 9 से 6 के बीच में बुलाना होता है. ईजीएम मे बी हेल्ड आउटसाइड द बिजनेस आवर्स. क्या बोल रहे हैं सर? यस, ईजीएम बिजनेस आवर्स के बियॉन्ड होल्ड हो सकता है. बट जब रेक्विजिशनिस्ट ईजीएम बुलाएंगे, ये वाला केस जो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो वो बिजनेस आवर्स के अंदर बुलाएंगे. अगर बोर्ड खुद ईजीएम बुलाता तो आउटसाइड बिजनेस आवर्स भी बुला सकता था, पर ये जो रेक्विजिशनिस्ट बुलाएंगे वो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स बुलाएंगे. दे कैन कॉल इट ऑन एनी डे, संडे भी बुला सकते हैं, बट नेशनल हॉलिडे वाले दिन नहीं बुला सकते हैं. बोर्ड अगर बुलाना चाहता है अपना इनिशियली, बोर्ड नेशनल हॉलिडे वाले दिन भी बुला सकता था. बट ये वाले जो रेक्विजिशनिस्ट के रिक्वेस्ट पे जो मीटिंग यहां पर आप देखोगे, अगर उनको बुलाना पड़ जाए बिकॉज बोर्ड नहीं बुला रहा है, उस सिचुएशन में इट हैज टू बी ऑन एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलिडे. इट कैन बी हेल्ड ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. जब रेक्विजिशनिस्ट बुला रहे हैं बोर्ड के नहीं बुलाने पर, बोर्ड अगर खुद बुलाता है इवन आउटसाइड बिजनेस आवर्स ईजीएम बुला सकता था. तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐड कर दूं ये बिजनेस आवर्स का क्वेश्चन, इसमें लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे. तो जब पास्ट क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें सोचो और क्या चेंजेस भी किया जा सकता है इन द लाइट ऑफ द रीसेंट अमेंडमेंट्स इन द current years. Okay, question number 2, validity of the following बताना है आपको. The board refused to convene the EGM on the ground कि कुछ शेयरहोल्डर्स ने रीजंस नहीं बताया कि ये रेजोल्यूशन क्यों पास हो रहा है. सपोज आप एमडी को रिमूव करने वाले थे, इसी क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा. बोर्ड बोल रहा हम नहीं बता, रिफ्यूज करेंगे बिकॉज आप रीजंस नहीं बता रहे हैं कि एमडी को आप रिमूव क्यों करना चाहते हैं. आपने मेरे से अभी थोड़ी देर से ज्ञान सुना, कहीं मैंने लिखा that the requisitionist must also explain the reasons for calling, the reasons for taking a particular decision at EGM. हाँ, उसमें मैटर जरूर बताएगा कि वो मैं EGM इस मैटर के लिए बुला रहा हूं, पर reasons for that proposed matter ये बताना जरूरी नहीं होता है. तो बोर्ड का ये स्टैंड गलत है. तो ये क्वेश्चन जब आता है, अगेन फर्स्ट पूरा वो 1/10 वाला ज्ञान आप समझाओगे. यहां पर रेक्विजिशंस को मैटर्स बताना पड़ेगा. व्हाट मैटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैटर्स बता देगा, बट रीजंस फॉर दोज मैटर्स ये बताना जरूरी नहीं है. और इसमें थोड़ा आपको झलक भी दिखला देना चाहिए मेंबर्स होल्डिंग 1/10 वाला. मेक अ हैबिट. ईजीएम के जब केस स्टडीज आते हैं थोड़ा सा शो ऑफ कर ही देना चाहिए. When members holding 1/10 of the paid up capital carrying voting power make a written request signed by all of them or any of them on acting on their behalf, then the board shall take steps within 21 days from the date of deposit of request. Make a habit to show off. तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखने से रिस्क नहीं है, पर वो लाइन कई लोग फिर पूरा ही उड़ा देते हैं, वो रिस्की हो जाएगा. तो मैटर्स बता देगा कि मैं ये मीटिंग एमडी के रिमूवल के लिए बता रहा हूं, पर मैं रीजंस फॉर एमडी रिमूवल इस रेक्विजिशन में स्टेट करना जरूरी नहीं है. एंड बोर्ड कैन नॉट रिफ्यूज टू कॉल ईजीएम इस ग्राउंड पर तुम रीजंस नहीं बताए मेरे को कि एमडी को क्यों रिमूव कर रहे हो, तो मैं मीटिंग नहीं बुलाऊंगा. दिस द बोर्ड कैन नॉट डू. द बोर्ड रिफ्यूज टू कन्वीन द ईजीएम ऑन द ग्राउंड दैट द requisitions have not been signed by the joint holder. तो जब joint holder रहते हैं तो याद रखिएगा, एक भी अगर साइन कर देता है ना जॉइंट शेयर होल्डर में, एक का साइन माना जाता है सबका साइन हुआ है. रीड दिस एवरीवन. फिर जरूरी नहीं कि एक एक जॉइंट होल्डर को पर्सनली साइन करना पड़े. एक भी साइन कर देगा
तो माना जाएगा सबका साइन हो गया है. इज इट फाइन? एंड ये जो पार्ट है, लास्ट पार्ट, ये आप कोरम वाले क्लास के बाद देखोगे, आफ्टर कोरम. तो इफ यू हैव डन द कोरम क्लास, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. तो प्लीज आज ही इसकी राइटिंग प्रैक्टिस वापस से करना. इनफैक्ट ईजीएम वाला क्वेश्चन अपने हाथ से लिखो, वरना आप एग्जाम में मिस्टेक करोगे. ये एजीएम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी सिंपल. मैंने आज क्लास में पढ़ाते वक्त भी आपके संग डिस्कस किया था. बोथ दीज क्वेश्चंस आर वेरी गुड. यू मस्ट रीड इट. थैंक यू सो मच.